I've not worked with a more secure actor than Varun. Really? Oh, that's lovely. Genuinely. Very true. And that's why, like, from my heart, like, I feel like whatever his awareness is in life, he's genuine. Whatever he says, it's true. What he's spoken in that moment has been honest, has been truthful. And he's someone who's always trying to get better in every way in life, not just as an actor, in every other way in life. And I feel that security that I see in him, I've not seen in anyone I've ever worked with. This is why people love him, because he will talk about other people. He will ask everybody. He will ask people, "How are you? How is your son? How is your wife?" He will acknowledge people's work. He will acknowledge people's hard work, and he's not out there to take his credit. Mutual admiration society. Everybody knows how good he is. Then when Good Luck was getting good reviews, the first person I felt like calling up was Varun to say that, oh, like, they like me, Varun, because like I got so used to sharing so much with him on this outdoor, and he's such an easy person to talk to, and he really feels like he's rooting for you all the time, and he has become someone that I trust a lot. He's honestly one of the most. Wow. You don't like compliments. No, I don't like. I was just seeing, I was like, all these girls who said these wonderful things, I have so much love for all of them. Yeah. And But no, wait, And this is I- about you. no, it's about me. But I'm just saying because I just met Shraddha a few days back. She's a childhood friend, and I feel so much love for her. Same with Anushka. Like, I had such a good time making that film with her. I wish, like, I had started sometime earlier or whatever. I don't know. I wish we worked a little bit more together. Like, I could have done 2-3 films with her. It would have been a breeze. And Janvi, now Kiara also, we had such a good time. And Janvi, because they're doing Sunny Sanskari, Tulsi Kumari together. And Janvi is like, we really care about each other. Yeah. You know, as friends, we've really gotten, like, we tell each other so much about our lives, and we share so much. And she's a good girl, yeah. They're very This is why people love you. Because we're actually talking about you here. But you're turning it to say thank you. This is No, but what should I say about me? I mean, I'm just, पता है आपके बारे में कृति सान ने क्या बोला था कल? क्या कुत्ता है, कमीना। बहुत उसको कुछ बोलोगे तो वो कुछ पेट में रखेगा नहीं, सब बोल देगा, पोल खोल देगा। नहीं. She said that people don't know his depth. True. I feel that a lot with you. True, maybe, yeah, true. आपकी एक बहुत वार्म एनर्जी है. आई फील अगेन आप कह रहे हो कि आपकी एनर्जी डेविड धवन से मैच करती है 100%. पर देयर इज अ लॉट ऑफ योर मॉम्स Side, oh yeah, big time. मतलब bro, honestly, a very deep and genuine compliment I can give you is that you're a really well raised man. That's nice. That's nice. Yeah, that's Because a of- compliment to my I've parents. seen how for you treat sure. people. My mom, yeah. जब हम टर्फ पे भी रहते हैं when you're playing cricket, I see how you treat everyone around. Sports reveals character. 100%. And जिन लोगों ने आपको पास से देखा वो आपका कैरेक्टर जानता है. Don't like talking about this though. No, don't like, मतलब what do मैं खुद की तारीफ, it's not about खुद की, यार क्या अपने आप को बड़ा करके क्या मिलेगा किसी को? क्या मिल जाएगा? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, कुछ होने तो नहीं वाला है. उससे अच्छा तुम, I would get excited with these compliments at one point. Compliments used to make me really happy at one point. But now it's genuinely uplifting. Even in your wall, you had that. Help others grow. That genuinely gives me a little bit more excitement. If something can happen with me doing something good for others, फिर वो एक बात हुई ना, फिर एक बहुत बड़ी बात हुई. निस्वार्थ होके अगर आपने किसी के लिए कुछ कर दिया, फिर वो एक एवोल्यूशन होती है. It's the purpose of living. हाँ, Right? या मैं ये थोड़ी, मैंने जब जो भी किया है, जैसे भी रहा हूँ इनके साथ, मैं थोड़ी ना किया था क्योंकि मुझे लगा कि एक लोग मेरी तारीफ करेंगे एक शो पे. You're just being yourself. या आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ. सो एक Gen Z related सवाल है. हाँ, ठीक है. We're living in the age of mental health issues. Yeah. And जितना मैंने समझा है, I feel कि most mental health issues when it comes to Gen Z are related to some kind of insecurity, which is subjective to the person. या जो बट it's insecurity inflicted by society ना. जो अनुष्का शर्मा ने उस क्लिप में कहा आपके बारे में कि he is the most secure actor. भाई, even I would second that a lot. Like, and I've met a lot of people on the show as well. आप genuinely एक बहुत secure इंसान हो, and it's not something you're born with. I'm sure you worked on this. Right? You know, आपने बोला आपको सुनना नहीं, तो एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि बाहर आए मेरे बारे में, genuinely मैं ये चाहता हूँ कि हमने न्यू कमर्स आई वर्कड विद, कितने लोगों को मेरे जितने फिल्में मैंने की है उनमें से कितने नए लोगों को चांस मिला है, ये बाहर नहीं आता है. क्योंकि जितना भी डिबेट होता है हमारे इंडस्ट्री में कि
inside है, outside club, this happens, which is a very popular conversation. मेरे फिल्मों में कितने नए लोगों को चांस मिला है. जब मैंने अक्टूबर की थी, नई लड़की थी. जब मैं अभी बॉर्डर कर रहा हूँ, वहाँ पे नई लड़की होने वाली है. जब मैंने ABCD 2 की थी, how many newcomers were launched in that film? जब मैंने स्ट्रीट डांसर की थी, there was some 20 to 22 new faces in that film around us. हमने उनमें से डांस कम्युनिटी में कितने लोगों को काम मिला है, कितने लोग जजेस बन गए, कितने लोग कोरियोग्राफर बन गए, कितने लोग पीपल आर डूइंग वेल ऑल्सो. तो वो बाहर अनफॉर्चुनेटली नहीं आता है, आई फील. आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये लेगेसी नोटिस होगी. नहीं, बट वो उसके लिए वो बहुत लेट हो जाता है. दे हैव टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली व्हाट आई एम डूइंग, बट वो अगर चेंज होना है तो फिर अभी से शुरुआत होनी चाहिए, तो ही तो नए लोग आएंगे, वरना कैसे आएंगे? वरना तो हम सिर्फ बातें ही करेंगे. अब इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सिक्योर बने कैसे? बिकॉज आई एम सिक्योर विद माई सेल्फ. नो, बट ये एक जर्नी थी. या मे बी बिकॉज आई स्टार्टेड इन अ 2 hero film. एक मिनट, ओके वेट, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, आई अज्यूम दैट यू वर कॉन्फिडेंट इवन बिफोर फिल्म्स. या वेरी वेरी तो वेरी. बट वो भी एक जर्नी थी टू बिकम दैट कॉन्फिडेंट, कि आप टीनेज से कॉन्फिडेंट थे. कभी भी इनसिक्योर फील किए हो? 100% we've all had our insecure moments, but I was pretty much बचपन में 1-2 सीख हुए होगी, कुछ गलतियाँ की होगी, मम्मी ने डांटा होगा और बोला होगा कि लोगों की मदद करो. I remember one line my mother said, whether you become a big actor, a good actor, a successful businessman, you be a good human being first. तो ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था बचपन में. मुझे आज तक याद है ये. बस यही चीज़ याद है मेरे को. आई ऑनेस्टली फील कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, इसलिए ये सब किया है. मैंने मेरी खुद की मम्मी से पूछा था कि व्हाट हैव यू डन राइट व्हेन आई वाज लाइक अ बेबी, बिकॉज कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइडियन साइकोलॉजी आपकी साइकोलॉजी वहाँ फॉर्म होती. तो एंड माई मॉम इज अ स्लाइटली अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, ओके, इनहेरेंटली. सो आई फाइंड इट डैम वियर्ड दैट आई हैव टर्न्ड आउट सो कॉन्फिडेंट. तो शी सेड दैट व्हेन शी वाज रेजिंग मी, someone had told her that throughout life the world will try to poke holes in a human being's confidence, and the job of a parent is to pour so much water in the glass that no matter how many holes are poked, the water level still stays. See, मैं बहुत ही अर्ली एज में मुझे ये समझ में आ गया था कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है. सब लपेट मार रहे हैं. उन्होंने लपेट नहीं, ऐसे फेंक रहे सब लोग. किसको क्या पता है? तुमको किसने बनाया? तुम ये बोलते हो ये होगा तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है. तुमको कैसे पता? घंटा पता है तुमको? तुमने पढ़ा है किधर? प्रैक्टिकली तो तुमने किया नहीं है. तो जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हो एंड यू गो थ्रू इट, आपको नहीं पता होगा. एंड वन फिट्स ऑल साइज नहीं है ह्यूमन बींग्स में. तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ होता है तो बात करते हैं, यार ये मेरे साथ अभी हुआ था, यार मैं क्या करूँ, तेरे साथ भी ऐसा होता है, तू बता ना कैसे होता है, ये होता है वो होता है. किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी फील हुई which you've overcome, which whatever you're comfortable talking about? Oh, I don't think so यार, ऐसा कुछ नहीं है. इनसिक्योरिटी एज इन अबाउट व्हाट? हाँ, एक होता था, करियर का इनसिक्योरिटी होता था ना, अप्स एंड डाउन्स एंड दिस एंड दैट. बट जब लाइफ ही आपको एक चमाट मारती है तो देन दिस ऑल बिकम्स यू लाइक, ये तो हैंडल कर लूँगा. जिंदगी कभी भी हो सकती है. तो करियर का अप डाउन तो कुछ नहीं है, वो तो लड़ लेंगे हम लोग. जिधर से आए थे, जिधर पहुंचना था उधर तो पहुंच ही गए. तो इसलिए मेरे को ज़्यादा कंप्लेन करने में, इट्स नॉट अबाउट दैट. आई डोंट वांट, सी माय होल आइडिया वाज कि मेरे को पॉडकास्ट पे आके अपनी ज़िंदगी के बारे में रोना नहीं है कि यार मेरे साथ ये हुआ फिर वो हुआ एंड लिक माई वुंड्स. बिकॉज मुझे वो एक ट्रेंड दिखता है, वेदर इट इज़ जेन ज़ी, वेदर इट इज़ गुड बिजनेस, वेदर इट इज़ वॉट, एवरीवन अपना दुख दर्द के बारे में बात करना चाहते हैं. You don't let the scar heal then. तो आप खुशी क्यों नहीं बांटना चाहते हो? आप हैप्पीनेस क्यों नहीं बांटना चाहते हो? क्या ही हो जाएगा रोने से? एक्सप्रेस करो अपने. आई एम नॉट सेइंग नहीं, बट आप जैसे यू आर नॉट अ थेरेपिस्ट, दो आई फील यू फील लाइक यू हील पीपल. I know I heal people. Exactly. I knew that. So, but आप खुशी भी तो बांट सकते हो. आप रणवीर को हंसा भी तो सकते हो. आप खुशी भी तो दे सकते हो. You know, I pay a price for this. I'm sure. Yeah. I'm sure you do. Like my mental health gets 100% a lot. Obviously because you're taking that energy ना रणवीर. Yeah. आप बोले जा रहे हो मैं एनर्जी ले रहा हूँ, आप एनर्जी ले रहे हो, आप वो एनर्जी भी ले रहे हो.
ऑनेस्टली मैंने एक पर्पस अटैच कर दिया है इस पूरे आर्ट बट आज मैं आपको बोलूँ कि मैं सुबह में उठा, मेरे कुत्ते ने मुझे लिक किया, एंड मैं आया, आई केम डाउन, मैं नीचे आया, आई सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग, आई सॉ सम फ्लावर्स, आई हैड द बेस्ट टाइम, आई हैड अ लाफ, एंड देन आई केम हियर. The whole vibe changes. एक 22 साल के इंसान को आप क्या कहना चाहोगे करियर इनसिक्योरिटी के बारे में? Work hard. Nothing replaces hard work. Nothing replaces hard work. अपना काम करो, work hard, believe in yourself. I'd also say be patient. Patience तो हम सबको सीखनी है जिंदगी में भाई. Obviously. And असली सफलता ना आपको 10 साल बाद दिखेगी. 10 साल के लिए बस 100%. मेहनत करो. यार, but we can't be unaware कि there is a social and economical what do you call it? It's not equal. It's not equal for everyone. Everyone doesn't have the opportunities a lot of us have otherwise. And this is not about the film industry. मैं जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ. तो जिनके पास वो पावर है वो दूसरों को अपलिफ्ट करो आप, और जब आपको वो पावर मिल जाती है आप दूसरों को अपलिफ्ट करो, क्योंकि वही एक सही तरीका है आगे बढ़ने का. अगर आप खुद को ही अपलिफ्ट करते जाओगे और इतने लोग पीछे रह जाएंगे तो आप अकेले के सक्सेस से क्या करोगे? अकेले माउंटेन टॉप पे जाके क्या खो खो खेलोगे क्या? अकेले क्या करोगे आप? On a more individualistic level, कोबी ब्रायंट का एक नाइकी एड है, एंड मैं नाइकी एड्स बहुत ज्यादा देखता हूँ क्यों वहां से मोटिवेशन. अमेजिंग वंस. आई एम श्योर यू आल्सो फील. और इतने ज्यादा आइकॉनिक नाइकी एड्स. करेक्ट. कोबी ब्रायंट का एक एड है where the main message is don't worry about your future, don't worry about hard work, just focus on getting better. बस. It's all about the next step. Yeah. शांति से just try getting better. Every day get a little better. ये ABCD 2 में लाइन था क्लाइमैक्स में जहाँ द राइटर रोट इट कि हम हारे या जीते इससे फर्क नहीं पड़ता, बट लाइफ इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट स्टेप. हमेशा एक नेक्स्ट स्टेप रहेगा जिंदगी में जो आप लेते हैं. इट्स ऑल अबाउट दैट. नथिंग इज लॉस्ट. यू कैन ऑलवेज come back. Always. Like how in sports you do. Yeah. Like how I did in paddle and I beat Rohit and Ranbir.